السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج ہم پڑھیں گے جو ہم نے اعراب پڑھا تھا پچھلی کلاس میں۔ اعراب اس کے MCQs، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم نے حروف تہجی پڑھے تھے، آپ حضرات کو یاد بھی ہوں گے حروف تہجی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں ایک چیز باقی رہ گئی تھی، تو وہ میں آپ حضرات کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے بعض مرتبہ ان میں سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، تو ہمارا ایسا کوئی جز باقی نہ رہ جائے جس کے ذریعے سے سوال پوچھے جاتے ہیں، جس سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلے وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ اس سے ایک چیز ہماری باقی یہ رہ گئی تھی کہ عربی کے حروف کون کون سے ہیں۔ عربی کے حروف جو خالص عربی کے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً 10 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیے، سا، ہا، زال، صاد، واو، اس کے علاوہ طا، وا، اور ایک رہ گیا عین، ایک رہ گیا کاف، ایک رہ گیا ہمارا حمزہ۔ اب گنے کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں کون کون سے ہیں۔ ایک تو ہے سا، ایک ہے ہا، ایک ہے زال، ایک ہے صاد، ایک ہے واد، ایک ہے وا، ایک ہے وا، پھر عین اور قاف اور کیا رہ گیا؟ حمزہ۔ تو یہ ہو گئے 10 حروف، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خالص فارسی کے حروف جو صرف فارسی کے ہیں، وہ حروف کتنے ہیں؟ فارسی کے حروف آپ کو بتا دیں، فارسی کے حروف وہ ہیں، صرف ایک ہی ہے جو خالص فارسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ والا 3 نقطے والا، 3 نقطے والا جو زا ہے نا، وہ فارسی کا ہے، خالص فارسی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پا ہے، چا ہے، اور ایک لفظ اور ہے گاف ہے، یہ وہ حروف ہیں جو فارسی اور ہندی اور فارسی، یہ دونوں زبانوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی پیچھے سیکنڈ گریڈ کا ایگزام ہوا تھا 17 تاریخ کو، تو اس کے اندر یہ آیا تھا کہ یہ زا کے بارے میں پوچھا تھا، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو کس کا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں ہندی حروف۔ ہندی حروف کون کون سے ہیں؟ جیسے ایک تو گیا ٹا، ڈا، ایک ہو گیا ڈا، 3 تو یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلی کلاس میں پڑھے تھے 14 مرکب حروف، وہ بھی ہندی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ہندی کے حروفوں کی تعداد پوچھ لے، ٹوٹل تو کتنی ہو جائے گی؟ 17، 3 تو یہ اور پلس میں 14 مرکبات، 17 حروف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ حروف جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ تو وہ ہے، یہاں لکھ دیتا ہوں میں، اس طرف لکھ دیتا ہوں، جیسے زا ہے، پا ہے، اور اس کے علاوہ فا ہے اور غین ہے۔ یہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہندی اور فارسی کے اندر، ہندی اور فارسی میں بات آ گئی تھی کہ ہندی کے اندر یہ بھی پڑھا نا، ہندی کے اندر 17 حروف تو یہ ہیں۔ اس کے علاوہ
पा, चा और गाफ, ये फारसी में हमने पढ़ लिए हैं। पा, चा और गा, जो हिंदी और फारसी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये अशेक रह गया। तुर्की और फारसी के मुश्तरका हुरूफ। तुर्की की ओर पूछ लें, पूछते तो नहीं है, मान लेते हैं पूछ ले। तुर्की और फारसी के मुश्तरका हरूफ कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा अपने जाल, एक हो जाएगा आ। ये तुर्की और फारसी के मुश्तरका हरूफ हैं। उम्मीद है कि आप हजरात समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे सबक की तरफ। सबक हमारा आज कौन सा है? आज है एराब के MCQs। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? सबसे आसान है, जज़म, साकिन, हरकत, मौकूफ। आपको सिर्फ 3 सेकंड दिए जाएंगे, जल्दी बताएं। सही जवाब हो जाएगा हरकत। क्वेश्चन नंबर 2, जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? आपको मिलती है 3 सेकंड। साकिन, मुतहर्रिक, जज्म, एराब। इसे क्या कहते हैं? जिस पर कोई हरकत हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक हरूफ। ठीक है। सवाल नंबर 3, जब लफ्ज पर एक ही किस्म की दो हरकतें हो तो उनको क्या कहते हैं? जैसे 2 जबर आगे, 2 पेश आगे, 2 जेर आगे, तो इनको क्या कहते हैं? जज़म, तनवीन, मद, जबर। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, आपको तनवीन कहते हैं। सवाल नंबर 4, तनवीन किस जबान के अल्फाज पर आती है? तो उर्दू, अरबी, फारसी या तुर्की? किस अल्फाज पर तनवीन आती है? सोच के बताइए। तनवीन आती है अरबी अल्फाज के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5, जिस हरफ पर तशदीद हो उसकी आवाज अलिफान आती है, यानी उसको उसकी आवाज कैसी आती है, उसको कितनी बार पढ़ते हैं? ठीक है, सवाल ये है, 1 बार, 3 बार, 2 बार या नहीं पढ़ते, या पढ़ते ही नहीं है तशदीद वाले हरफ। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दी जाती है आपको 3 सेकंड, जल्दी बताइए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया है 2 बार। जैसे तशदीद की अलामत ये होती है, डब्लू की सी होती है, छोटे से लफ्ज के ऊपर आता है, तो इसको 2 बार पढ़ते हैं, 1 बार पीछे वाले हरफ के साथ मिला के। 1 बार तो जैसे लफ्ज लिखते हैं अपने, इसको अबा नहीं पढ़े, इसको पढ़ते हैं अब्बा। क्या पढ़ते हैं? इसको अपने पढ़ते हैं अब्बा। ठीक है, इसमें बा 2 बार पढ़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, जिस अलिफ पर मद हो उसे क्या कहते हैं? जिस अलिफ पर मद हो उसे क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, हमजा या अलिफ कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा, बिल्कुल सही जवाब। जैसे अलिफ है, इसके ऊपर मद आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? अलिफ ममदूदा। सवाल नंबर 6। ठीक है, और इस तरीके का सवाल पूछा भी गया था पीछे 2nd ग्रेड में। सवाल नंबर 7, लफ्ज के आखिर में या पर जो खड़ा जबर होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे लफ्ज के आखिर में होता है ना, जैसे ये या भी, इस वजह से खड़ा जबर होता है। जैसे ईसा, लफ्ज ईसा के अंदर होता है, ईसा, मूसा, तो या के ऊपर खड़ा जबर होता है, इसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 7, अलिफ ममदूदा, हरकत, मद या अलिफ मकसूरा? तो आपको दी जाती है 3 सेकेंड, प्लीज जल्दी इसका जवाब दीजिए। कमेंट में इसका जवाब लिखते जाइए या फिर अपने पास भी लिखते जाइए, कोई मसला नहीं है।
बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अलिफ है मकसूरा, मद के ऊपर अलिफ हो, अलिफ के ऊपर मद आए उसे अलिफ ममदूदा, और या के ऊपर खड़ा जबर जो आए उसे कहेंगे अलिफ मकसूरा, जो या पढ़ी नहीं जाती। सवाल नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर सवाल अभी। जिस हरफ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं? फतह का मतलब हो गया जबर। जिस हरफ के ऊपर फतह हो उसे क्या कहते हैं? हमने बताया था आपको, जबर के दो नाम हैं, फतह और रफा और नाम है। तो यहाँ फतेह वाला हरफ पूछा है, तो क्या ऑप्शन है? मफ्तू, मकसूर, मजमूम, मंसूब। दो तो इसमें ऐसे ही कट हो जाएंगे, मकसूर जिसके नीचे कसरा हो, मजमूम जिसके ऊपर जम्मा हो उसे कहते हैं। मंसूब बच गया और मफ्तू बच गया। ये दोनों आते तो अलिफ के ऊपर ही हैं, सॉरी, दोनों होते तो जबरी हैं, लेकिन फतह, लफ्ज फतह आ जाए तो उसको कहेंगे मफ्तू। अगर जबर मनसूबा नसब आ जाए तो उसको कहेंगे मंसूब। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9, जिस हरफ पर रफा हो उसे क्या कहते हैं? अब आगे रफा की बात। जिस हरफ पर रफा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे मजमूम, कहेंगे मजमूम, मरफू, मजरूर, मकसूर। मकसूर नहीं कहेंगे, मकसूर जिसके ऊपर कसर आए वो मकसूर होगा, मजरूर जिसके ऊपर जर आए वो मजरूर होगा, मजमूम नहीं, जिसके ऊपर पेश आए मजमूम तो वो होता है। तो क्या बच गया? मरफू। रफा, मरफू, नाम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल, जिस हरफ पर जर हो उसे क्या कहते हैं? जर वाला हरफ। तो मरफू नहीं होता, मजरूर, मजमूम नहीं होता, मंसूब जिसके नसब होता है उसे मंसूब कहते हैं, मजमूम जम्मा वाले को, मरफू रफा वाले को, मजरूर किसे कहेंगे? जर वाले हरफ को मजरूर कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे और ध्यान और तवज्जो के साथ देखोगे तो सवालों के अंदर ही जवाब छिपे पड़े हैं। सवाल नंबर 11, अरबी या फारसी के लिए लफ्ज में नून के बाद बा हो तो नून की आवाज किस में बदल जाती है? इकलाब का कायदा हो गया, इकलाब, नून की आवाज किस में बदलती है? नून की आवाज नून नून में या मीम में, दोनों में, या में? या में तो बिल्कुल कभी नहीं बदलती, दोनों के अंदर भी नहीं बदलेगी। और नून की आवाज अगर नून में बदलेगी तो फिर बदलना थोड़ी हुआ वो, नून को बा के बाद नून में नहीं बदलेंगे, नून तो आई है। तो ऑप्शन बच गया अपने पास मीम। किस में बदलेंगे? मीम के अंदर बदलेंगे। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 देखते हैं। वो नून जो पूरे तौर पर अदा किया जाए उसे क्या कहते हैं? पूरे तौर पर जो अदा किया जाए यानी उसका तलफ़ुज़ पूरा अदा किया जाए। तो नून मलफूज, नून शुबा गुन्ना नहीं होगा, नून गुन्ना गुन्ना भी नहीं होगा, नून पतनी या फिर नून मलफूज, दो बच गए। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर मलफूज, यानी जिसको पूरा अदा किया जाए उस नून को क्या कहेंगे? नून मलफूज। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 या मेरा 13, चलो। वो नून जिसकी आवाज गुनगुनाहट पे होती है, ये सॉरी पे नहीं, ये लिए होती है, माजरत चाहते हैं। ठीक है, कुल्लु इंसान खत्ताऊन, हर इंसान खता करने वाला है, तो हम भी हर इंसान के अंदर ही आते हैं, ये लिए है। ठीक है, तो क्या होती है? वो नून जिसकी आवाज़ गुनगुनाहट, गुनगुनाहट, इस पे ध्यान देना, गुनगुनाहट। ऑप्शन आप बता देंगे, नून शुबा गुन्ना, नून गुन्ना, नून कतनी या फिर नून मलफूज। मलफूज नहीं होगा, अभी हम पढ़ के आए मलफूज नहीं होगा, तो नून गुन्ना होगा, ठीक है, या शुबा गुन्ना होगा, नून कतनी भी नहीं होगा। तो दोनों में से कौन सा होगा? गुनगुनाहट वाला नून होगा, नून, शाबाश, बताइए बताइए, नून गुन्ना, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर
14। वो नून जिसकी आवाज़ ना तो ज़ाहिर की तरह हो और ना पूरी गुनगुनाहट के साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी वो आवाज़ जो ना तो पूरी ज़ाहिर हो और ना पूरी गुनगुनाहट हो तो उसे क्या कहेंगे? तो गुनने वाले को तो कहेंगे नून गुन्ना, ये नहीं होगा। तो नून कतनी, नून गुन्ना, नून शबे गुन्ना या नून मलफूज, मलफूज भी नहीं होगा। तो क्या होगा? नून कतनी और नून गुन्ना में से एक होगा। तो बताइए क्या होगा? सवाल नंबर 14। सोचिए सोचिए, सही सोचा आपने। ऑप्शन नंबर 3 नून शुबह गुन्ना, यानी जाहिर भी अगर गुनगुनाहट होती तो गुन्ना हो जाता और जाहिर होता तो नून मलफूज हो जाता। तो ये होगा नून शुबह गुन्ना। सवाल नंबर 15। उम्मीद है कि आप हजरात समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हजरात हमसे पूछ सकते हैं बजरिए कमेंट। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में वो चीज़ समझा देंगे। सवाल नंबर 15। वो वाओ वाओ मारूफ की अलामत क्या है? पूछा है वाओ मारूफ की अलामत क्या है। ठीक है, वाओ मारूफ, खड़ा जबर नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। उल्टा पेश इसको रखेंगे, सीधा पेश इसको रखेंगे, जज्म नहीं होगा। तो उल्टा पेश में से होगा और सीधा पेश में से होगा। तो वाओ मारूफ पूछा है, तो मारूफ पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उल्टा पेश। ठीक है, वाओ मारूफ की अलामत होती है उल्टा पेश। ठीक है, जिसे हम खींच कर पढ़े जाते हैं। जैसे लफ्ज लिखते हैं अपने लहू, उसको पढ़ते हैं लहू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लहू, हा को खींच के पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हा पे ही होंगे लहू, उसको पढ़ेंगे लहू। ठीक है, तो ये होता है वाओ मारूफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और बस ये चंद सवालात रह गए, इसके बाद अपना सबक मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 16। वाओ मजहूल की अलामत क्या है? तो वाओ मजहूल की अलामत उल्टा पेश, जज्म, पेश, हमजा। हमजा नहीं होगा, उल्टा पेश नहीं होगा। उल्टा पेश होता है वाओ मारूफ। जज्म बच गया और पेश बच गया। पेश भी नहीं होगा क्योंकि पेश तो खुद एक अलामत है, वाओ की अलामत थोड़ी है। पेश तो हरकत है, तो बच गया जज्म। ये हो जाएगा वाओ मजहूल की अलामत। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। या मारूफ की अलामत क्या है? या मारूफ, जज्म, खड़ा जबर, खड़ा जबर, खड़ी जेर, सॉरी खड़ी जेर, खड़ा जबर, उल्टा पेश। तो वाओ, जज्म तो बिल्कुल ही नहीं होगा वाओ मारूफ, सॉरी या मारूफ, जज्म तो बिल्कुल ही नहीं होगा। खड़ा जबर भी नहीं होगा, खड़ा जबर खुद खुद एक अलामत है। उल्टा पेश वाओ मारूफ पढ़ के बच गया क्या? खड़ी जेर। या मारूफ की अलामत क्या हो जाएगी? खड़ी जेर या मारूफ की अलामत हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18। या मजहूल की अलामत क्या है? या मजहूल, जज्म, उल्टा पेश, खड़ा, खड़ी जेर या पेश। तो सोचिए, थोड़े 3 सेकंड है आपके पास, सोच कर बताइए। या मजहूल, जिस तरीके से वाओ मजहूल के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी अलामत क्या होती है? जज्म। इसी तरीके से या मारूफ की अलामत भी क्या हो जाएगी? जज्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। वो वाओ जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? वो वाओ जो लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उसे क्या कहेंगे? तो वाओ मारूफ पढ़ के आए हैं, वाओ मजहूल पढ़ के आए हैं, वाओ मादूला, वाओ लीन। वाओ मारूफ नहीं होता,
मारूफ होता है जिसके ऊपर उल्टा पेश होता है। वाव मजहूल जिसके ऊपर जज्म होता है। और वाव लीन उस हरफ से पहले वाव के ऊपर ज़बर आता है। ठीक है, वाव से पहले हरफ के ऊपर ज़बर आता है। बच गया वाव मादूला। वाव मादूला वो वाव है जो लिखा जाएगा पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे हमने मिसाल पढ़ी थी खुशी, ख्वाब, खान, ठीक है ना, ख्वाहिश वगैरह। इसमें जो वाव होता है वाव कौन सा होता है? वाव मादूला। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है वो या जो लिखने में तो आए लेकिन अपने से पहले हरफ में मिल जाए उसे क्या कहते हैं? हाँ, वो या जो लिखने में तो आए लेकिन अपने से पहले हरफ में मिल जाए उस या को क्या कहते हैं? क्या या मारूफ कहते हैं, या लीन कहते हैं, या मजहूल कहते हैं, या मखलूत कहते हैं? एक लफ्ज़ में यहाँ गौर करेंगे, मिल जाए। मिल 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 मिलने के माना, मखलूत होता है मिलने के माना में। तो बगैर किसी शक शुबे के किसी की तरफ नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे या मखलूत की तरफ। सवाल नंबर 21, वो वाव जो मातूफ और मातूफ अलैह के दरमियान आता है। मातूफ और मातूफ अलैह के दरमियान आता है वो वाव कौन सा होता है? क्या वाव मुरक्कब अत्फी होता है? वाव मादूला, वाव मजहूल, वाव लीन। मादूला पढ़ के आए हैं, मादूला नहीं होगा। वाव मजहूल पढ़ के आए हैं, वाव मजहूल नहीं होगा। वाव लीन, वाव से पहले ज़बर आए उसे वाव लीन कहते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर आए ज़बर आए उसे या लीन कहते हैं। ठीक है, कौन सा बच गया? बच गया ऑप्शन नंबर 1, वाव मुरक्कब अत्फी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आखिरी सवाल हमारे आज के वीडियो का। चलिए देखिए आप हजरात, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, वो वाओ जिससे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी बताया है, क्या कहते हैं? बगैर किसी ऑप्शन के वाउलिन कहते हैं। लॉक कर दिया जाए वाउलिन को। वेरी गुड। मजहूल नहीं होगा, मारूफ नहीं होगा, मादूला नहीं होगा। अगर आपको चंद ये इस्तिलाहात याद रख लेते हैं और थोड़ा सा ही अगर सवालों के ऊपर ध्यान देते हैं तो दोस्तों आप जो है वो अच्छी तरीके से इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो, और याद रहे ये हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो प्री और मेंस और सेकंड ग्रेड सबका चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नेट्स के सवालात भी आते हैं और सेट भी बाज़ मर्तबा सेट और नेट में से भी सवालात पूछ लेते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।